Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever. So who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay. Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel, I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing. Living in the gutter, Sanskrit. Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. पवन देव 33 कोटि हैं जी, 33 कोटि। कोई एक तो पेश करता, उसने तुम्हारे देवताओं पे, तुम्हारे भगवानों को भी लात मारी। उसने पिस किया, पहले ने जुबान से पिस किया, इसने अमली तौर पे चौक में पिस किया तुम्हारे देवी देवताओं पे, तुम्हारे शास्त्रों पे। हम तो मैदान में थे, हम तो मैदान में हैं और हम मैदान में रहेंगे और फख्र के साथ सर उठा के रहेंगे। हम कोई गोबर भक्त हैं? हम कोई मालशिया को सपोर्ट करने वाले हैं? हम मालशिया का काम मालशिया से करवाते हैं, हम स्कॉलर्स का काम स्कॉलर से करवाते हैं। उल्लू के पट्टों एक मालशिया को बिठा दिया धर्म के ऊपर बात करने के लिए। वो कोई बंदा तो ढूंढो। ये झूठ रह गई थी जिसने अमली तौर पे मूत के दिखाया तुम्हारे भगवानों के ऊपर, तुम्हारी गीता के ऊपर, तुम्हारे धर्म शास्त्रों के ऊपर। एक को भी ना पेश कर सका और बकवास कर रहा है, छुप रहा है इस बात के पीछे। गीता के ऊपर मूत के कह रहा है कि रसूलुल्लाह के किरदार पे बात करो। उल्लू के पट्टे, तेरे अंदर कोई इखलाकी गैरत नहीं है, लेकिन कहां से आए वो इखलाकी गैरत जो इस्लाम सिखाता है? वो इखलाकियात तुम्हें कहां से आ जाएं कि सनातनियों से कहते कि मैंने तो तुम्हें तेल लगाया था यार, ये बंदा मेरे घर में आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। माफी मांगते और नाक रगड़ते और सनातनियों का नाक काटते और फिर बात करते, जैसे आमिर भाई ने कहा था कि चलो ठीक है, और जिस काम से आमिर भाई हैं तुम्हारी पोस्ट के पीछे हैं उसी पे बात करेंगे ना। कोई बात थी, तुम कोई बात रखना चाहते हो रसूलुल्लाह के किरदार के हवाले से, तो ईमान यूनियन के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। निकलना बाहर अपने मालिश खाने से, उल्लू के पट्टे, अपने मालिश खाने से बाहर निकल। एक मिनट जी, मैं बात चाहता हूँ जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, हमारे मोहतरम और प्यारे भाई जनाब आमिर हक साहब तशरीफ ला चुके हैं। जुल्फकार भाई ढोल के साथ इस्तकबाल किया।
पम 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 पम। क्या बात है। अभी नहीं बोलना सर, अभी नहीं बोलना अमर भाई, अभी नहीं बोलना, अभी बिल्कुल नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। मैं आया, मैं सदके, मैं डसके, मैं सदके कि मैं डसके, मैं सदके जावा के डसके जावा। अमर भाई, हाय 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 हाय। हाय 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 हाय, रसगुल्ला रसगुल्ला, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। मुबारकबाद जी, बहुत बहुत बधाई आमिर भाई। यकीन करें सीता, सॉरी एक मिनट अली भाई, सॉरी एक मिनट, यकीन करें रसगुल्ला और गुलाब जामुन जितने गोल है, मुझे सीता जी की याद सताने लगी है। क्या कहने। ओए होए 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 होए। जनाब, सबसे पहले अली भाई और जुल्फकार भाई को प्यार भरा और तमाम अमर भाई, ये जाहिल ने साहिल ने बना दी है ये जलेबी। क्या ये जलेबी बना सकते हैं? तो इसने तो ये भी नहीं बनाई, जुल्फकार भाई ये भी ना करें, ये भी नहीं बनाई, वो तो भाग गया। खैर बहरहाल मैं प्रॉपर तरीके से जुल्फकार भाई, अली भाई और जितने लोग सुन रहे हैं, पप्पी और जप्पी के साथ प्यार भरा सलाम, शुक्रिया, दुआएं, और जो जो लोग भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं सर, उनको सलाम। और अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी तरफ से माशाल्लाह आप तो गीता जो है ना फिंगर टिप्स पर आपको याद है, और आज ही मैंने क्लिप लगाया है कि 9 से 10 महीने पहले इसकी मंजी इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर, गीता के ऊपर अली भाई ठोक चुके हुए हैं। इसकी इन जितने सनातनी है ना जो इस वक्त चैंपियन बने हैं गीता के, इनकी मंजी अल्लाह के हुक्म से इस्लामिक अवेकनिंग पर 9 महीने 10 महीने पहले ठुक चुकी है। ये भाग चुके हुए हैं अपने सनातन धर्म से। ये एक एक के बारे में कह चुके हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास जनाब को प्रमाण नहीं है, शस्त्र छोड़ के भाग गए। ये बोलते हैं अपनी गीता के बारे में, ये जी 70 श्लोक सही हैं, 700 क्लिप मौजूद है, जाके देख लो क्या बनी थी इनके साथ, क्या नहीं बनी थी। इनके बड़ों से नहीं हो पाई है कि इनकी क्या हैसियत। बाकी आप लोग कैरी ऑन रखें, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने जिस तरह इस चीज को लेकर चले, श्री राम जी के हवाले से, गीता के हवाले से, महाभारत के हवाले से इतनी तफसील के साथ इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर, और बिलखुसूस अली भाई ने जो लंबी स्ट्रीम्स के जरिए, प्रेजेंटेशंस के जरिए पेश किया, पब्लिक को पता है ये कितने पानी में है और कितनी, इनको भी खबर है कि हमारे साथ बननी क्या है, तो वही हुआ। बाकी आप लोग करें उस पर बात। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर बात रख रहा था कि इसने चौक में गीता को रख के, वो जो तीर इसकी तरफ आया, इसने गीता की मोरी ढूंढी और उसके अंदर घुसा छोड़ा जो आमिर भाई की तरफ से आया था। इसने कहा मैं क्यों हनुमान बनूं, मैं क्यों अपना पिछवाड़ा यहाँ पर रण भूमि में, युद्ध भूमि में छिलवा के बाद में सारी जिंदगी अपनी नस्लों के अंदर वो चीज डाल के जाऊं। तो इसने इस अंदाज से एक दफा भी इसने नहीं कहा कि हाँ मैंने ये पोस्ट की थी और मैं इसके ऊपर बात करने के लिए और गीता को सुपीरियर साबित करने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा, एक चीज बड़ी जबरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, छुपना शुरू कर दिया लफ्ज सदका के पीछे, उल्लू के पट्टे। और मैं हैरान हूं कि आमिर भाई ने कहा कि यार तू जो इतना बड़ा चैंपियन और ज्ञानी है, सदके को डिफाइन तो कर जरा। इसकी जुबान गुंग हो गई सनातनियों, तुम्हारे योद्धा की इस्लाम के ऊपर लफ्ज सदका की एक्सप्लेनेशन के ऊपर इसकी जुबान गुंग हो गई। और दूसरी तरफ आमिर भाई के साथ मैं एग्री करता हूं कि आमिर भाई ने अपने वक्त का सदका दिया और इस बदबख्त इस मालशिए के मालिश खाने पे गए और इसका तेल जो है इसी के ऊपर उंडेल के और सनातनी के ऊपर उंडेल के आ गए। इसके तेल खाने के ऊपर जो मालिश इनकी हुई है और इनके सपोर्टरों की हुई है, वो आप सब शाहिद और गवाह हैं। तो आमिर भाई वहां पर, अच्छा उसके पीछे छुप रहा है, उल्लू के पट्टे, निकल और गीता पे बात कर। जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने के लिए आप मैदान में आए हैं, निकलना बाहर, वरना तेरे मालिश खाने पे, बदबू खाने पे, गोबर खाने पे कौन जाएगा सनातनियों के अलावा। भाई मैं पहले बता चुका हूं कि एक्सपर्ट्स के पास मोची जाएगा, मोची एक्सपर्ट के पास जाके उसको स्कॉलर जाके या कोई स्टूडेंट जो है आला दर्जे का, वो जाके तुम्हारे मालिश खाने पे तुम्हें इस्लाम नहीं सिखाएगा, उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें कोई एतराज है तो आ जाते। अच्छा, सदके के पीछे छुप रहा है, बार बार छुप रहा है, इस्लाम का सदका नहीं खा रहे तो और क्या कर रहे हो, उल्लू के पट्टे। भौंकता तो इस्लाम पे है, बोलना सनातन पे, बोल क्रिश्चियनिटी पे, बोल बोल क्या बात है, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। लेके बैठ ना, उसको लेके बैठ, तेरी क्या आइडियोलॉजी है,
उसके ऊपर एक स्ट्रीम करके देख, ये जो तेल तुमने सनातनियों को लगाया, सनातनी तुझे वापस ना करके गए सूद समेत, तो फिर कहना करना अपनी आइडियोलॉजी पे। और बात करता है ब्रह्मबाजी करता है, अपने ये ब्रह्मबाजी उसकी करते हैं, ये उसकी दलाली करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की, सनातनी उसकी वो उनकी। उल्लू के पट्टो, तुम में से कौन एक दूसरे का फॉलोअर है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बैठे हैं, ईमान यूनियन बैठी है पूरी की पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कह सकते हैं फकर से सर उठा के कि जो मेरी आइडियोलॉजी है, हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं मेजोरिटी उनमें से जो नॉन मुस्लिम, उनको निकाल के मुसलमान हमारे साथ हैं, ये सब हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। कह सकते हो तुम कि तुम्हारी आइडियोलॉजी को वो फॉलो करता है या तुम उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? डूब के मर जाओ, पता लग गई, औकात सामने आ गई कि तुम उसकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते, वो तुम्हारी आइडियोलॉजी के ऊपर थूक रहा है, तुम्हारे मुंह के ऊपर कह रहा है कि मैं नहीं सनातनी, पोस्ट लगा के थूक के चाट रहा है और नाक काट रहा है तुम्हारी, और फिर भी तुम उसी के कांधों पे रख के बंदूकें चला रहे हो। मैं तो हैरान हूं इनकी जहनियत पे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सेंसिटिव और समझदार लोग जो हैं वो जरूर इस तमाम गेम को समझ गए होंगे कि हुआ क्या है। और मैं आमिर भाई को बहुत बहुत बधाई दोबारा से पेश करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपने जो काम करने के लिए गए थे, आपने वो करके दिखाया। हालांकि आपने, मैं कहता हूं, बड़ी दरियादिली का मुजाहरा किया और आपने कहा कि चलो इंसानी और अकली बुनियाद के ऊपर बड़ी खूबसूरत आपने बात रखी कि चलो सॉरी लिख दो ये पोस्ट डिलीट करके, क्योंकि तुम मानते नहीं हो, लिख दो कि तुमने इनको सनातनियों को तेल लगाया था, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे घरों में घुस के ये बात आमिर भाई ने वहां पर भी रखी कि रसूलुल्लाह के किरदार पे, तेरे इस मोची खाने पे भी बात करने के लिए तैयार है, मैं आ चुके हूं। तो इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जिस चीज को ऑन नहीं करता उसको डिलीट करके उसके ऊपर माजरत करता और माजरत करके रसूलुल्लाह के किरदार पे बात करता। और मैं आपको बताता चलूं सनातनियों, ये जो तुम्हारे योद्धा हैं, इन्होंने मूतना है उसी तरह, और इनके पिछवाड़े उसी तरह छिलने हैं जैसे हनुमान के छिले थे। जिस दिन भी इनका आमना सामना किसी मर्द मोमिन से, ईमान यूनियन के किसी भी मेंबर से हो गया, रसूलुल्लाह के किरदार के ऊपर भी वो जूते पड़ेंगे कि तुम टकोरे करोगे कि यार ये पिछवाड़ा इनका किसी तरह से सिल जाए। हनुमान जी का जिस तरह से नस्ल दर नस्ल अब तक चलता हुआ आ रहा है, ये हाल होगा रसूलुल्लाह के किरदार पे। ये लोग बात करेंगे उल्लू के पट्टे, जिनकी ना कोई आइडियोलॉजी, ना सर ना पैर, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? बिल्कुल। तो माशाल्लाह जी, इस बात के ऊपर भी मैं आमिर भाई को अप्रिशिएट करता हूं कि इस बात के ऊपर भी उन्होंने डट के उसको कहा कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो जानता था कि वहां पर भी उसका ये हाल होना है, इसलिए उसने आमिर भाई की काल काटी और जो एक जेन्युइन शर्त थी उसको ना माना। अच्छा, एक सवाल आमिर भाई से, एक सवाल, और अली रजा हुरम साहब से, आपसे भी एक सवाल है। अब सवाल ये है कि इसने अपनी जो पोस्ट है अभी तक लगाई हुई है कि मोमनो आगे डिफेंड करो। अब मुझे बताइए, एक मोमन तो गया था, उससे तो बात नहीं, इसने फिर या तो फिर ये डिलीट करे इस पोस्ट को, अगर कोई और मोमेंट बढ़ गया तो इसके पास दूसरी बाजी नहीं है जो उसको दे देगा। तो मैं चाहता हूं कि इस पे पहले बात रखिए कि या तो इसको पोस्ट डिलीट करनी चाहिए क्योंकि इसने बात नहीं की गीता पे। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये मुतालबा बिल्कुल आपका जेन्युइन है कि गीता पे बात होगी और ये बात करेगा। इखलाकी तौर पे इसको चाहिए कि जो इसने हरकत की है आके उसकी मादरत करे, उसकी कोई जस्टिफिकेशन दे। और मुझे लगता है कि मैं ये गीता के एक श्लोक दिखा दूं, क्योंकि जुल्फकार भाई, आमिर भाई ठीक फरमा रहे हैं जी। गीता के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्ट्रीम्स कर चुके हैं, तकरीबन कोई 9-10 माह पहले, और तरतीब के साथ हमने स्ट्रीम्स की हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसके ऊपर काम करेंगे। मुझे ये लगता है, ओए खच्चाड़े, मालशिए देख और बता पब्लिक को और हिंदुओं को कि श्री कृष्णा जी की शरण में अपनी बाजियां दे दी हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी, हाँ जी, श्री कृष्णा जी फरमाते हैं कि जब तक किसी की बाजी, अली भाई फिर कृष्णा जब बोले ना कि कृष्णा को बाजियां दे दी हैं उनकी शरण में, तो ब्रैकेट में आमिर हक लिखा करें ना, पिछले जन्म का भी तो फिर। हाँ जी जी बिल्कुल, ये तोहफा ले लें खच्चाड़ा जी। और साथ ही साथ मालशिए, ये देख, ये भगवत गीता का चैप्टर नंबर 9 है और इस वक्त तुम्हारे सामने श्लोक नंबर 32 है। इसके अंदर कृष्ण जी फरमाते हैं कि ये बर्थ से ही तुम्हारी जो औरतें हैं ना वो नापाक हैं, उनकी बर्थ ही लोअर है, वो पाप यूनि में पैदा हुई हैं, पापी पैदा होती हैं। वैश्य और शूद्र भी ऐसे ही, जब तक श्री कृष्णा जी की शरण न ले लें। और श्री कृष्णा जी की शरण वो पता कैसे श्री कृष्णा जी शरण में कैसे लेते हैं? ब्रह्मा वेवर्ता पुराण पढ़ो, श्रीमद् भगवतम पढ़ो, और उसमें मुझे लगता है कि ये कोई, चले मैं वो अल्फाज रोकता हूँ, कुब्जा वाला। हाँ, कुब्जा वाला जो वाकया है कि वो
श्री कृष्णा जी उसके घर में रहने के लिए मेहमान के तौर पे गए, और रात को फिर श्री कृष्णा जी ने उनको जब शरण में लिया, दबे कदमों गए और जाके उसको उठा के ले आए और उसके साथ इस प्रकार से सेक्स किया कि वो जान से ही जाती रही, वो मरी गई। तो इस तरह से श्री कृष्णा जी शरण में लेते हैं। ऐसे ही आपकी बहन बेटियों ने पवित्र नहीं हो जाना, आके बताओ उल्लू के पट्टे के दे दी है शरण में, या अभी तक नापाक है? क्योंकि गीता को ऑन करता है ना तू, और ये खच वाला भी ऑन करता है। गीता के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी जब तक ये पोस्ट एंड डिलीट नहीं होंगी। अब भगवत गीता के ऊपर हम जरूर प्रोग्राम करेंगे और तुम्हें भी बुलाएंगे, निकलो बाहर, और या तो गीता को मुकम्मल तौर पे जिस तरह तुमने अपनी स्ट्रीम के अंदर इसके ऊपर मूता है उस तरह से आके कह दो कि भाई ये मेरे बस से बाहर है, मैं ये काम जिस तरह सनातनी नहीं कर सकते, मैंने तो बस झूठ बोला था, मेरे गले पड़ गई ये बात। ये दोनों करें ये बात, तो उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। तब तक तो आपका इलाज मालजा चलता रहेगा। जी हमें अभी कॉल करने लगे हैं जी इसे दोबारा। इसे दोबारा कॉल होगी लाइव। क्या बात है जी, क्या बात है। ठोके ठोके इन दोनों को कॉल होने लगी है लाइव, फिर तबसरा करते हैं इसके ऊपर। ये देखे जी लाइव कॉल जाने लगी है जी, ठोको आपके ठोको। चैंपियन को ये कॉल जा रही है। उठाना, सुपर चैट खा के नशे करके लगता है गिर गया तुम। इसे पता नहीं था ये जो गीत है ना, जाने जाने किस रूप में नारायण है, जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसको पता नहीं था कि ये हमारे बारे में है। कॉल उठा, कॉल तेरी माँ का झोपड़ा। दीदी का बंदोबस्त कर रहा है, सिंगिंग जा रही है, सिंगिंग हो रही है, सिंगिंग हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, कहता है कि आमिर भाई मजबूर हो गया, उल्लू के पट्टे तू कुरान के साथ कंपेयर कर रहा है तो मजबूर नहीं हो गए, तेरी औकात दिखानी थी, नहीं उठाया, नंगा करना था तुम्हें। लो जी, अब खचवाला को कॉल जाने लगी है जी, दूसरी कॉल। इसको रिंगिंग किया, इसने नहीं उठाया, ये है औकात। अच्छा, इनको लग रहा था मेरे हाथ काट के बात ओ तुवार, मुझे तो खेल मिल गया तो अड्डी ऐसी। जब मैं फारिग मैं रिलैक्स बैठा हूँ मैं तो अड्डियां बाजियां नु कॉल मिला देनी है तो ले मेरे लो बहुत अच्छे। ठीक है, चलो जी, खचवाला को कॉल जी, ये खचवाला। उठा, अल खच्चू मल खच्चू वमा अदरा का मल खच्चू, उठा ना इमाम सीबवे के साले, उठा। ये नेतन्याहू का साला है ये। कंपैरिजन ऐसे करता जैसे वेद व्यास है, खोती का बच्चा। जब धर लिया तो आगे से कहता है मेरी एक्सपर्टीज कुरान पर है, तो पुथी उंगली क्यों ली थी? उठा कॉल तेरी ऐसी की तैसी। कॉल उठाओगे? हाँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे आमिर हक को इनके पिछवाड़ों में उंगली फेरने की शियारी चढ़ती है। नहीं उठा रहे जी, भगौड़े भगौड़े, ये हैं तुम्हारे चैंपियन भगौड़े गीता के, ये चैंपियन है। ठीक है, है तुम्हारा कोई गीता का चैंपियन तो उसको मैदान में निकालो। हाँ निकालो, निकालो उसको, जिनकी मंजियां हम चौक में ठोक चुके हैं। हमें चले हुए कारतूस चलाने का कोई शौक नहीं है। जाके वीडियो देख लो, क्या उसकी माँ बहन 9 महीने पहले इस्लामिक अवेकनिंग पर हुई थी। वीडियो क्लिप आज मैंने फ्रेश करके, ताजा ताजा माल है, नया नया साल है, गीता वाला माल है, गीता वाला। अब मैं चंद अल्फाज अली भाई ने जो कहे हैं उस पर मैं अर्ज कर दूं। देखें, डिटेल तो इसके ऊपर तबसरा अली भाई ने कर दिया, उसका क्रक्स भी निकाला। कुछ चीजें डिटेल के अंदर अलीना सिस्टर के रिव्यू के अंदर भी आ गई, अली भाई ने भी उसका क्रक्स निकाल दिया, चीजें निकल कर सामने भी आ गई। एक चीज तो क्लियर है कि ये बंदा लाइव थूक कर चाटने के लिए वहां रेडी हुआ पड़ा हुआ था। गीता की पोस्ट लगाई, मोमिन प्लीज आंसर। जब मोमिन ने धर लिया, मोमिन प्लीज आई एम जस्ट डिस्को डांसर। लो जी, कहता है मैं नचनिया हूं।
कहता है मैं नचनिया हूं, सनातनियों के पैसे पर ठुमके लगाने वाली नचनिया है ये। तो कहता जी मैं पोस्ट डिलीट कर दूंगा, आप नबी पाक। अच्छा, उल्लू सनातनी उल्लू के पट्टे ऐसे इस्लाम की नफरत में अंधे हुए हैं, उनको भी समझ नहीं पड़ रही कि इनके बाप ने, इनके नियोगी बाप को, यानी इनके बायोलॉजिकल बाप ने, आमिर हक ने इनके नियोगी बाप साहिल को किस विषय के ऊपर कॉल की है। ऐसे अंधे हुए हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा किस लिए कॉल की है। उस पोस्ट के ऊपर कॉल की थी, गीता वर्सेस कुरान के ऊपर। कहते जी आमिर हक वो टॉपिक, हमारा टॉपिक तो ये था, टॉपिक और टॉपिक कौन सा था? टॉपिक था तुम्हारी पोस्ट, जिस वजह से कॉल गई। स्क्रीन पर तो पोस्ट शेयर हो रही थी, 2 हफ्ते से प्रोग्राम हो रहे थे। एंड टाइम के ऊपर कहते हैं जी ये गीता छोड़ो, मैं डिलीट कर रहा हूं, कहीं संगीता नाराज ना हो जाए, गीता पे कोई विषय पर बात नहीं करेंगे, लिहाजा आप हमसे इस्लाम के टॉपिक पे बात कर ले। मैंने कहा उस टॉपिक पर भी बात करने को तैयार हैं, मगर पहले जो बकलोल बाजी की थी, जो बोल बच्चन किया था, उस बोल बच्चन को डिलीट करो, माफी मांगो पब्लिक को। तुम्हारा तो रोज का कोतखाना है, तुसी तो रोज का यान खाना लाए थे उठ के, ठीक है, जो उठते ने आप हिंदुओं को खुश करने के लिए। कभी वो श्री राम का राम आए हैं बत्तियां छजाऊंगी, लाम आए हैं, लाम दा खलोंदा कोई नहीं तो एक खलो जाते ने। 8 से 11 महीने तक राम की नोनों में किसी किस्म की हरकत नहीं थी, किसी किस्म की हरकत। जितनी बरकत थी वो बरकत अली खान में थी, रावण। तो 8 से 11 महीने तक लंका के अंदर सीता की लंका लगाता रहा। उस वक्त तो नहीं है बोले लाम आए हैं बत्तियां बुझाऊंगी, घर में खाने को नहीं है, बत्तियां बुझाऊंगी, पलते बिठाऊंगी। उल्लू के पट्टो, ना राम को सिद्ध कर सकते, ना उसके चरित्र पर बात कर सकते, ना उसके मंदिर को समझा सकते, ना वहां से वोट ले सकते, ना वाल्मीकि रामायण को पढ़ सकते, ना उसके चरित्र को किसी तरीके से सिद्ध कर सकते। लाम आएंगे बेटा, मुझ थोड़े जमन थे लाम आएंगे, ऐसे लाम आना है तो ये मेरा लाम पकड़ लो। अगर इसी तरह का बेबरकता लाम है तो ये मेरा लाम पकड़ लो, उससे लंबा भी है और उससे सीधा भी है, यानी बात अच्छा, तो बतिया बुझान का क्या मकसद है सर? इतने खूबसूरत हैं। असल में राम जी काले जो मूर्ति लगी है ना, तो वो बत्तियां बुझा के वो लिशके मारते हैं उसके ऊपर ना, जैसे बच्चे नहीं घड़ी होती इस तरह। तो ये मकसद कहने का कि गीता से भाग गए, उसके बाद ये तमाशा शुरू कर दिया। और मैंने ये कहा भाई ये 2 काम कर दो। अच्छा, स्टार्ट से कह रहा था ऐसा पखंडी, ऐसा हरामी है, ऐसा हरामी हुआ है, जैसे मैंने कहा साथ ही पब्लिक को सीधा करने के लिए। देखिए अभी मैं मान गया हूं कि मैं पोस्ट डिलीट करने लगा हूं, तो ये देखना आवाज़े हक अभी एक और शर्त लगाएगा। वो शर्त तेरे बाप ने तेरे पैदा होने से पहले वहां लगा दी हुई थी, शर्त तो तेरे बाप ने लगा दी थी प्रोग्राम के शुरू में ही, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं तो पहले से कह रहा था ड्रामेबाज। ए जी वो शर्त लगाएंगे लिहाजा बात नहीं हो पाएगी, तो भाड़ में जा, बात होगी तो उसी चीज के ऊपर होगी जिस चीज की तुम भरमबादी करते हो। भगवत गीता वर्सेस कुरान, भगवत गीता वर्सेस कुरान। इन्होंने मुसलमानों को सनातनी समझा हुआ था, इनको पता नहीं था कि हम कुरान भी जानते हैं, हम संगीता को भी जानते हैं। हाँ, हम सब पढ़े हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा आमिर, तो एक बात मैं आप तो इनसे किसी विषय पे बात तब भी कभी मुमकिन हो सकेगी, वो भी ये आएंगे, तकलीफ है ना, तो मालिश खाने से उठ के आए और ये बात कर ले। हमारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, इसीलिए तो हम बैठे थे। हाँ, ये गीता के ऊपर सॉरी अली भाई, सॉरी अली भाई, से पहले आप आगे बढ़े। सदके का जिक्र आपने किया, वो तो मैंने इसको जिस वजह, हाँ सॉरी मैं भूल गया था बात में, तो इसके बाद आप तसल्ली से अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। सदके के ऊपर आपने जिक्र किया, उस उल्लू के पट्टे को मैंने कहा भाई बेसिक बता, वो सबके सामने पब्लिक आपने भी उसका जिक्र कर दिया। उसको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, फकीरों को सदका मंगना ले आंदे ने। यानी मैं मल्टीपल तरीके से इस मसले को इसको एक्सप्लेन कर दे, लुघवी तौर पर भी, जैसे हम कहते हैं जा यार जा तुझे भीख दी,